Honorable Next Chairman Sir, our Honorable Principal Sir, Shri Naveen Tikmani, as well as his family, person in education interest, Shri Pankaj Goyalji, esteemed guests, highly regarded academic and co-curricular coordinators, Madam Anamika Basudas, Madam Devika Shorkar, beloved teachers of Aggressive Boys School, our administrative head, Madam Noina Chakraborty, respected finance officer, Mr. Shubhata Bhattacharya, senior section headmistress, Madam Swati Ray. I thank each and every one of you for being here with us today in this morning. Good morning once again to one and all present here. We gather here today to pay tribute to our late founder chairman, Sri B.P. Tikmani on his birth anniversary and also celebrate Children's Day, which was yesterday. We are trying our best to put up a show for our beloved children. The video of this celebration would be uploaded, which would be enjoyed by our children. It is just our effort to make them feel special on this special day. Chacha Nehru, as was fondly called by children for his affection towards them, had said, "The children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country." To quote Nelson Mandela, "History will judge us by the difference we make in the everyday lives of children." This is the day, it's a reminder that every child deserves education, nurturing, and the best of everything. They are the building blocks of the nation, and hence the future of the nation depends on how well they are brought up. It is the day to realize their importance in nation building, providing them the opportunity to open their wings and fly high. We also need to understand the fact that the impact of pandemic on children will be lifelong. Children's lives have changed in profound ways due to change in their lifestyle and social isolation, which has taken a toll on their physical health and mental health. Let us all pray to the Almighty that we are able to bring our children back into their normal lives. It is quite probable that after a gap of 2 long years, our children are going to face stumbling blocks in resuming school. This is why I feel we must all take up a pledge to be by their side always, to extend our hands in every possible way and invest our interest in nurturing, conditioning them once again. And let us all start the movement back to school. Last but not the least, and now, to those who are adult now, please keep the kid inside you alive. A very, very happy Children's Day to all of us present. There are some people who change your life in an instant, and you never realize how much change actually happens till you probably pause and look back at the journey you have made. Born in the renowned Tikmani family with its Tikapchand legacy of Rajgarh, Rajasthan on this very day, 15th November 1946, our late founder chairman B.P. Tikmani was such a man of firm conviction, perseverance and modern outlook, had emerged as one of the most distinguished social reformers for his outstanding contributions in the field of education, science and technology, healthcare, sports and games, commerce and industries, and many other areas of social significance. His literary and journalistic activities have left an indelible mark in the respective fields. The book Yug Purush, 100 Years of Mahatma Gandhi, authored by him and ceremoniously published in the year 1969 by the former Defence Minister of India, Shri Jagjeevan Ram, received
His remarkable services for the leprosy patients in Maharashtra under the leadership of Baba Amte, as well as his deep engagement in social services in Bihar in 1967, which Sri Jayaprakash Narayan are fondly remembered by all. His participation in the Daku Andolan Shivir in the Chambal region, Madhya Pradesh, under the leadership of the great Gandhian Sri S.N. Subbarao remains a high watermark in the field of his social reform activities. As a founder and former secretary of Lal Baba Hindi Sahitya Center, he had made major contributions for the advancement of Hindi literature. His commitment for the socially and economically marginalized sections of the society finds eloquent expression in his book, India on the Way to Socialism. Both as an industrialist and a socially conscientious citizen, he took path-breaking initiatives for the overall development of Howrah, which unmistakably reflects his love for his Karma Bhumi. It needs to be mentioned that it is actually due to his relentless efforts that the name of Dapper Street under Bali municipality has been renamed as Agrasen Street after the name of Maharaja Agrasen through the institutions, Samiti and Trust named after the Maharaja and will be respectfully remembered by all future generations. Actually, the program comes fit in spirit. मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता गया. He was a visionary and eminent social philanthropist and a profound revolutionary educationist who not only propagated but also worshipped education. He was the true follower of the great saying of Swamiji that says, education is the manifestation of perfection already in man. His mission and vision was to educate the girl child from nursery to PG for her all-round development. Finally, in the year 1996, under his leadership and initiative, Agrasen Balika Shiksha Sadan was established. Being inspired by the success of Agrasen Balika Shiksha Sadan, he conceived the idea of establishing a boys' school in the same locality. Consequently, another noble idea became the reality when Agrasen Boys' School was established in the year 2012. Thus, he became successful in changing the industrial belt of North Howrah, Lilwa, into an education hub of Howrah, where girls and boys receive holistic education in a congenial environment. He is not only an inspirer, but an empowerer, a true mentor, guide, friend, and philosopher. He gave us the mantra that teamwork is the hallmark of any institution. He has instilled in us the need for deeper commitment and perseverance towards our work. Thus, under his magical guidance, we promise to scale greater heights on his birthday. Today, on this auspicious occasion, I would like to take the opportunity to wish Srimati Kusum Tikmani a very happy birthday filled with bountiful joy, bliss and health in the upcoming years. Who has joined him as a young counselor, has remained a constant inspiration to all his good work, proving the popular saying, behind every successful man there is a woman. Thank you, ma'am, for all the love, kindness and wonderful support that you have showered and bestowed on us throughout. May the Almighty continue to bless you and protect you forever. Now, I would like to invite all the honorable guests as well as the executives of Agrasen Balika Shiksha Sadan and Agrasen Boys School to garland the idols of Goddess Saraswati, Lord Ganesha, followed by Maharaja Agrasen and Pandit Jawaharlal Nehru, and light the ceremonial lamp and begin the day's program. Sir, I would like to invite everyone to garland the idols and light the ceremonial lamp of knowledge and wisdom and inaugurate the function.
Thank you everyone. कहते हैं जो इस धरती से विदा हो जाते हैं हम उन्हें कभी भी भुला नहीं पाते। वो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं और हम हमेशा उन्हें याद करते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी का आदर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, जब आप उन्हें अपने मन, मस्तिष्क और विचारों में रखते हैं तो उन्हें ही हम स्मृति कहते हैं और वही स्मृति एक खजाना बन जाती है। तो आइए हम सब आज यही कामना करें कि हम उस स्मृति रूपी खजाने को हमेशा अपने अंदर समाहित करके रखें। आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि लगभग आज के सभी हिंदी समाचार पत्रों में हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वासुदेव टिकमानी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही हमारे ही विद्यालय की कुछ भूतपूर्व छात्राओं ने सर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया है और अपने उस समय के विद्यालयी जीवन के बारे में भी और सर की स्मृति को भी याद करते हुए कहा है कि उस समय जब हम सब विद्यालय में पढ़ते थे तो सर हमारे अध्यक्ष महोदय हुआ करते थे और उन्होंने हम सभी को एक ऐसे बीज के रूप में बोया कि हम सब आज अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने हम सभी का सदैव सर्वांगीण विकास पर बल दिया और यही कारण है कि आज भी जब हम अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, हमारे सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, हम सर के आशीर्वचनों को याद करके, उन्हें याद करके, उनसे प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय वासुदेव टिकमानी जी को उनके पूरे जीवन को एक प्रस्तुति के रूप में देखते हैं।
Chennai. Surila Safar, a soulful rendition of some melodious tunes to be presented by the talented vocalist of Aghasit Bhatia Siksha.
জানাচ্ছি একটি কথা। আমাদের স্বর্গীয় চেয়ারম্যান স্যার, উনি খুব রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করতেন। আমি বাংলাতেই বলছি, উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করতেন। যে গানটি সেটি হয়েছে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। কার জন্য তুমি ভরসা করে, তুমি তোমার একলা চলো, একলা কাজ করে যাও। তো আমি মনে করছি যে আমরা সবাই মনে করছি উনি আমাদের কাছে চির অমর, এমন অমর হয়ে থাকবেন। উনি উপর থেকে আমাদের গানটি শুনছেন। শুরু করি তাহলে। था। इसी उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष संगीत की शिक्षिकाओं द्वारा सभी बच्चों के लिए एक गीत समर्पित की जा रही है। चलिए हम सब उसका आनंद लें। चूंकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी शिक्षिकाओं द्वारा जो गीत, नृत्य व नाट्य मंचन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन सभी की प्रस्तुति आज छात्राओं तक पहुंचाई जाएंगी ताकि वो भी बाल दिवस के उपलक्ष्य में इन सभी का भरपूर आनंद लें और खुश रहें। Thank you.
On stage today, as we know, is the birthday of Madam Tilmani. So I would invite Madam Kusum Tilmani also to be on stage to be felicitated today. Ma'am, I would request you to be here. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Madam. Happy birthday to you. I would request the entire Tilmani family and everyone there for a group photograph. शिक्षार्थी से शिक्षाविद तक बहुओं की प्रतिभा के धनी, दानी, परोपकारी, दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रमी व अपने कार्य के प्रति सदैव तत्पर व निरंतर भाव से लगे रहने वाले श्री वासुदेव जी टिकमानी का जन्म राजस्थान के बीकानेर में राजगढ़ नामक स्थान में श्री गोविंद राम जी टिकमानी व श्रीमती गिन्नी देवी के घर में हुआ था। श्री गोविंद राम जी टिकमानी ने अपने प्रारंभिक दिनों में राजगढ़ में रहकर अनेक सामाजिक कार्य किए और आगे चलकर हावड़ा अंचल को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और साथ ही सामाजिक कार्यों को जारी रखते हुए उन्होंने ही बेलूर जनता हाई स्कूल के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई थी। गोविंद राम जी टिकमानी एक महान व्यक्तित्व के रूप में हावड़ा अंचल में अपनी अमिट छाप बना चुके थे। यथा पिता तथा पुत्र की कहावत को चरितार्थ करते हुए श्री वासुदेव जी टिकमानी अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर समाज सेवा व परोपकार के पथ पर सदैव अग्रसर रहे। साथ ही साथ अपने पूर्वजों की जन कल्याण की भावना को और भी विस्तृत करने का बीड़ा इन्होंने उठाया। इनके कर्म व शिक्षा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल हुआ। बचपन से ही शिक्षा के प्रति टिकमानी जी समर्पित और संलग्न रहे। श्री गोविंद राम जी टिकमानी व गिन्नी देवी के घर पुत्र वासुदेव का जन्म हुआ। आइए इस दृश्य का हम सब मिलकर आनंद लें। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए। अरे गोविंद राम जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। ठीक कहा आपने। गोविंद के हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने भाई जी। इसका चेहरा तो बहुत ही तेजस्वी है। एकदम। धन्यवाद जी। आइए आप लोगों का मुंह मीठा करवाते हैं। आइए। धन्यवाद। एक दिन गोविंद राम जी टिकमानी पुत्र वासुदेव के साथ राजगढ़ की गलियों से होते हुए मुख्य चौराहे पर आते हैं।
बासु, राम राम करो। राम राम, राम राम। और कैसे हैं आप लोग? घर परिवार में सब कैसा है? जी भाई जी, घर परिवार में सब कुशल मंगल। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कैसी चल रही है? भाई जी, घर परिवार में तो सब बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी ठीक ही हैं, परंतु बच्चों की पढ़ाई ठीक से तो क्या बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ें और कहाँ पढ़ें? अच्छा, तो अगर विद्यालय की अवस्था इतनी खराब है तो वाकई हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जी भाई साहब, इस पूरे अंचल एक ही विद्यालय है, उसकी भी अवस्था सही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई सही से बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो विद्यालय की अवस्था तो ठीक करवानी पड़ेगी, तभी ये सुधार संभव हो सकेगा। क्या यह संभव है? अवश्य संभव है। आदमी कोशिश करे तो हर असंभव काम संभव हो सकता है। जी क्या मैं भी आपके साथ दे सकता हूँ बाबूजी? एकदम बासु, क्यों नहीं? आइए हम लोग सब मिलकर इस विषय पर विचार करते हैं। कुछ माने की हो आसपास, कोई अनबा हो जो खास खास आशा है। इस तरह श्री गोविंद राम जी टिकमानी व सब लोगों ने मिलकर राजगढ़ में अवस्थित विद्यालय को न सिर्फ नवनिर्मित किया, वरन उस विद्यालय में एक नए खंड का निर्माण किया, जिसका नाम टिकमानी खंड रखा गया। समय बीतता चला गया। राजगढ़ की उन यादों को लेकर बालक टिकमानी युवा टिकमानी में परिवर्तित हो चले और पश्चिम बंगाल के हावड़ा अंचल में अपनी शिक्षा आरंभ की और श्री हनुमान जून में हिंदी हाई स्कूल से अपनी विद्यालयी शिक्षा और लाल बाबा कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। एक दिन युवा वासुदेव जब अपने मित्रों के साथ कक्षा समाप्ति के बाद घर की ओर जाने के लिए निकल रहे थे, तभी उनकी और उनके मित्र दल की दृष्टि एक परिवार पर पड़ती है जो उत्कंठित व व्याकुल है। कोई वाहन नहीं, क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और अस्पताल लेके जाना है। धीरे क्या करूं? मुझे क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इनकी जान बचाऊं। कोई वाहन भी नहीं। देखो उनको, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? देखते हैं। अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों विचलित हैं? भाई जी, मैं तबीयत बहुत खराब है, उनकी तबीयत पल पल बिगड़ती जा रही, अस्पताल लेके जाना है, लेकिन कोई वहां नहीं है। ऐसा करिए। कोई बात नहीं भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, अभी हम कुछ व्यवस्था करते हैं। सुनो, ऐसा है, अभी तो यहाँ पर कोई वाहन नहीं मिलेगा, हम इन्हें क्या करते हैं, एक साथ मिलकर ले चलते हैं, बाद में कुछ देखते हैं। आओ चलो चलो, आइए भाई साहब, हम आपकी पत्नी को लेकर चलते हैं, आप चिंता मत कीजिए। आज का दिन तो बहुत खराब रहा, चिंता का विषय है ये। आज अगर सोचो अगर हम नहीं होते तो क्या होता। और सबसे बड़ी बात कि आज तो ये घटना हमारी आंखों के सामने घटी, ऐसी तो न जाने कितनी ही घटनाएं घटती होंगी जिनके बारे में हमें कोई खबर भी नहीं। तो तुमने क्या सोचा है वासु? कोई ना कोई तो हल निकालना होगा इसका। हाँ, हमें सोचना होगा। एक रास्ता है, क्यों ना इनके लिए नाइट स्कूल की व्यवस्था की जाए, क्या बोलते हो? इनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, हाँ। क्या बोलते हो? ये बहुत सही रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। और एम्बुलेंस होने से किसी को अगर कोई परेशानी हो तो भी
मरीजों को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो तुम मेरा साथ दोगे क्या इसके लिए? चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस प्रकार वे हावड़ा क्षेत्र में रोगियों व वृद्धों की जरूरत का ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाते हैं और बाद में वे सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के सचिव व श्री मां एम्बुलेंस के अध्यक्ष हैं। एक दिन टिकमानी जी जब स्टेशन के रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर कुछ गरीब बच्चों पर पड़ती। चाय गरम गरम चाय, चाय चाय गरम गरम चाय, फल वाला, बाबूजी फल ले लो, फल वाला, टीना लोहा बेचना है, पुराना टीना बेचना है, पुराना लोहा बेचना है। अरे बच्चों, इधर आओ। अरे बच्चों, इधर आओ, इधर आओ। जी बाबूजी, तुम लोग क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं बाबूजी। क्यों, तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं बाबूजी, क्यों, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं करता? बहुत करना है बाबूजी, पर हमारे पास ना तो विद्यालय जाने के लिए फीस है और ना ही किताबें। बाबूजी, हमें तो घर पे भोजन प्राप्त करने के लिए दिन भर कठिन परिश्रम करना पड़ता है। विद्यालय कैसे जा सकते हैं? क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? हाँ पढ़ना चाहते हो? हाँ बाबूजी, पक्का? हाँ बाबूजी। इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी। क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ, करनी तो पड़ेगी। चलो, एक काम करते हैं, इन लोगों के लिए एक नाइट स्कूल की व्यवस्था की जाए। वाह, क्या बोलते हो? ये तो बहुत ही अच्छी सोच है कि दिन भर बच्चे रोजी रोटी कमा के और रात को अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में एक और काम करना होगा। इन लोगों के पास तो इतना धन नहीं है कि ये पुस्तकें खरीद सके, इसीलिए इनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करनी होगी। एकदम ठीक। इस लाइब्रेरी से ये लोग पूरा लाभ उठा पाएंगे। हाँ, एकदम। लेकिन एक चीज और मैं सोचता हूँ, इन लोगों का बचपन ऐसे ना बीते, ये भी कुछ अपना मन बहला सके, इसके लिए इन लोगों के लिए खेल कूद के साधनों की भी व्यवस्था करते हैं। अरे वाह बासु, ये तो और भी उनका विचार है। तो तैयार हो? बिल्कुल। एकदम। बच्चों, आओ पढ़ने के लिए आओ। तैयार हो? जी बाबूजी। हाँ बाबूजी। चलो आओ, चले व्यवस्था आओ। करते हैं। आओ आओ, चलो। इस तरह टिकमानी जी नाइट स्कूल, लाइब्रेरी तथा बाली क्षेत्र में खेल के मैदान की व्यवस्था कराते हैं। टिकमानी जी हमेशा की तरह अपने कॉलेज से कक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकलते हैं मित्रों के साथ। तभी उन सभी के मध्य देश में वर्तमान समय में हो रहे भारत चीन युद्ध की चर्चा होने लगती है। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए धनराशि एकत्रित करने की व्यवस्था में जुट जाते हैं। और एक दिन हजारीबाग में अरे मित्र बासु, तुम हजारीबाग कहाँ आए? कल ही आया हूँ। कोई काम था क्या? नहीं, बस वैसे ही मिलने की इच्छा हुई, चला आया। मैं भली प्रकार जानता हूँ, अवश्य ही किसी न किसी को तुम्हारी आवश्यकता रही होगी। चलो
एक हॉल में। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं। यह हमारे लिए और भी गर्व की बात है कि इसी अवसर पर हमारे साथ हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम जी भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अब मैं वासुदेव टिकमानी जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे टिकमानी जी द्वारा लिखी पुस्तक का विमोचन करें। किताब का नाम है युग पुरुष 100 Years of महात्मा गांधी। धन्यवाद। ऐसे ही एक अवसर पर और आज इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित है हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं युवा टिकमानी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने द्वारा लिखी पुस्तक हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। पुस्तक का नाम है इंडिया ऑन इट्स वे टू सोशलिज्म। भाइयों और बहनों, आप सभी का इस सभा में अभिनंदन है। ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि श्री वासुदेव टिकमानी जैसे युवा न केवल समाज सेवा बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं और बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आज की युवा पीढ़ी से ये अपील करना चाहूंगी कि वे आगे आए, देश की उन्नति में अपना सहयोग दें, देश को सक्षम बनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। टिकमानी जी का विवाह सन 1969 में कुसुम जी से हुआ। पूरे परिवार और स्वयं उनकी सहमति देकर कुसुम जी उस समय में ग्रेजुएट की थी। सो शिक्षा में उनकी भी गहरी रुचि थी और साथ ही टिकमानी जी की भी शिक्षा में गहरी रुचि होने के कारण पत्नी कुसुम जी ने उनका भरपूर साथ दिया और अब इस तरह उनका जीवन पुत्री सुमन और पुत्र नवीन के साथ आगे बढ़ता है। चलो बजती है शहनाई, चलो बजती है शहनाई, कुड़ियाँ हो चंपराई। चलो बजती है शहनाई, कुड़ियाँ हो चंपराई। अखां बिच रंजू आए, हाय दिल दा टुकड़ा जाए। चलो बजती है शहनाई,
नच नचाती है, तेरा खिलखिल हंसनाती है, वीरानों याद सताए तेरा अजी, बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हो। क्या हुआ? किस बात की चिंता है आपको? आज मैं सुमन के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे जी? मैं सोच रहा था कि आज हमारे पास हर सुख सुविधा है और हम सुमन को कलकत्ता पढ़ाने के लिए आराम से भेज सकते हैं। लेकिन तुम कह लो, मैं सिर्फ सुमन के लिए ही नहीं बल्कि इस हावड़ा अंचल की सभी लड़कियों के बारे में सोच रहा था। ये तो बहुत अच्छा विचार है जी। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हावड़ा में लड़कियों के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है जी। तो तुम क्या बोलती हो? क्या मैं इसके लिए बापूजी से बात करूं? हाँ, जरूर। अगर आप बापूजी से बात करेंगे तो जरूर कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। तो ठीक है, मैं आज ही बापूजी से बात करता हूँ। चलो आओ चलते हैं बापूजी से बात करो। एक दिन वासुदेव जी टिकवानी अपने पिताजी के साथ बैठकर चिकित्सीय क्षेत्र में हो रही असुविधाओं के संबंध में बात कर रहे थे और तभी अग्रसेन सेवा समिति के गठन की चर्चा हुई। पायला को बापूजी। खुश रहो वासु। कहो, क्या बात है? बापूजी, आज एक बात बहुत परेशान कर रही है और मैंने और आपकी बहू ने मिलकर इसके बारे में कुछ सोचा है। कहिए तो मैं आपसे बात करूं। बिल्कुल, कहो। बापूजी, हावड़ा अंचल में लड़कियों के लिए कोई अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था नहीं है। लोग अपनी लड़कियों को कलकत्ता भेजना नहीं चाहते और इस वजह से लड़कियां आगे पढ़ नहीं पाती और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ लिलुआ में लड़कियों के लिए एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलें? बहुत सही विचार है वासु। सच में हमें यहाँ की लड़कियों के लिए भी सोचना पड़ेगा कि उनको भी इस लिलुआ जैसे लोहे के अंचल में लड़कियों का एक एक्सक्लूसिव स्कूल खुले और वो अपनी बच्चियों को यहाँ भेज सके। लेकिन एक समस्या है बापूजी। क्या? इसके लिए तो बहुत बड़ी मात्रा में धन की व्यवस्था करनी होगी। वो तो है वासु। तो कहो, क्या चाहते हो मेरे से? बापूजी, क्यों ना आप अग्रवाल समाज के अपने कुछ मित्रों के साथ बात कीजिए कि वो आपके इस काम में सहयोग दें। जरूर, मैं अपने समाज के लोगों से सहयोग का हाथ जरूर मांगूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके मित्रों से मिल सकूं और उनके साथ फिर हम एक बैठक कर सकें। जरूर, तुम इसकी व्यवस्था करो वासु। ठीक है बापूजी।
इस लिलवा अंचल में लड़कियों के लिए एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलना चाह रहा है। आपको लगता है इस लिलवा अंचल में लड़कियों का स्कूल चलेगा और वो भी अंग्रेजी मीडियम? क्यों नहीं चलेगा? जरूर चलेगा। अगर हम कोशिश करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है जी। परंतु इसके लिए तो काफी धनराशि की आवश्यकता होगी और हम में से तो किसी को भी अनुभव नहीं इस क्षेत्र में, कैसे होगा? आपकी बात भी मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा स्कूल खोलने के लिए धनराशि की तो जरूरत पड़ेगी ही। पर आप ये भी देखिए, हमारे बीच में ये दिग्गज समाज के बैठे हुए हैं पुष्कर लाल जी के लिए, जो ये काम बड़ा बाजार जैसे क्षेत्र में समाज सेवा और स्त्री शिक्षा का काम संभव कर सकते हैं, तो हम लिलवा में क्यों नहीं कर सकते जी? वो सब तो ठीक है, पर लिलवा में इतनी असामाजिक वातावरण है कि क्या कोई माता पिता अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजेंगे? हमें इस विषय पर सोचना होगा और अभिभावकों के मन में ये विश्वास जगाना होगा कि उनकी बच्चियां हमारी छत के नीचे एकदम सुरक्षित हैं। इस शुभ कार्य के लिए हमारी तरफ से छोटी सी धनराशि 2 लाख रुपए, धन्यवाद। आज से ही काम शुरू किया जाए। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। बाबूजी, चलिए शुरुआत तो हो गई, इस चीज का आरंभ तो हो गया और अब हम एक विद्यालय बना सकते हैं। तो आइए शिक्षा पर चलाएं और सहयोग का हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद। बस आप आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए, हम का अवश्य सफल होंगे। आइए। आइए। धन्यवाद। मुश्किल की घड़ी है ये, पर एक साथ मिलकर हम इस वक्त को भी बिता देंगे। इस तरह अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन विद्यालय की स्थापना करने की सोची गई। टिकवानी जी अपने कॉलेज लाल बाबा में ही अपने जूनियर श्री सरोज कुमार श्रीवास्तव से मिले थे और उन्हें पता था कि वर्तमान में वे गणित व कंप्यूटर के शिक्षक के रूप में डॉन बॉस्को लिलवा स्कूल में कार्यरत हैं। वे उनसे मिलते हैं। कैसे हो? प्रणाम भाई साहब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सरोज। और कैसे याद किया? तुमसे सरोज एक काम था, आओ बैठते हैं, बात करते हैं। सरोज,
कुछ लोगों के साथ मिलकर हमने एक धनराशि इकट्ठा की है एक बहुत ही नेक काम के लिए। बहुत बढ़िया। तुम तो जानते ही हो कि लिलुआ अंचल में स्कूल तो बहुत है, लेकिन लड़कियों के लिए कोई अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। जी जी। तो हम लिलुआ में ही लड़कियों के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं। जी भाई साहब। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं? हाँ, तुम। देखो, धन की तो व्यवस्था हो जा रही है, लेकिन इस धन को सही ढंग से कैसे प्रयोग किया जाए, विद्यालय को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए और यहाँ के लिए शिक्षिकाओं का प्रबंध, इस कार्यभार को मैं तुम पर सौंपना चाहता हूँ। जी भाई साहब, आप जो कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपका आशीष और विश्वास हो तो मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूँगा। अरे सरोज, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं उम्मीद ही नहीं, एक दृढ़ विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि तुम इस विद्यालय को उन ऊंचाई में सफलता की बुलंदियों पर ले जाओगे जहाँ पर इसका नाम ना केवल लिलुआ बल्कि पश्चिम बंगाल में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि विश्व में इसका नाम गूंजेगा। जरूर होगा भाई साहब। तो आओ, तुम तैयार हो? अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन विद्यालय का सफर सन 1996 में प्राचार्य श्री सरोज कुमार श्रीवास्तव व संस्थापक गोविंद राम जी टिकमानी व वासुदेव टिकमानी के नेतृत्व में 25 शिक्षकों तथा 500 छात्राओं के साथ शुरू हुआ। It's been a long time when the most awaited desire and dream of our founder chairman sir had started taking its shape. On 25th March 1994, when the then governor of West Bengal, His Excellency Shri K.V. Raghunath Reddy, had laid the foundation stone of Agrasen Balika Shiksha Sadan with the philosophy that if a girl child is educated, the entire society is educated. Bhai Sahab came to me in 1995 for this project. Without any second thought, I accepted his proposal. He told me to start the work of making admission form, framing diary,
selection of teachers. At that time, I was working in Don Bosco as a maths teacher. I started working as an administrator after taking my class in Don Bosco. I came here and on 3rd June 1996, the academic journey of Agrasen Balika Shiksha Sadan started with 524 students and 25 teachers from KG to class 6. Then, with non-stop effort of Sri Govind Ramji Tikmani and zealous contribution of Bhai Sahab, the school grew in size, facilities increased, students increased in number, teachers increased in number. The society responded tremendously. I was in constant touch with Bhai Sahab, with that progressive mind, diligent and dedicated. I saw all shades of personality, and with the same tune of dedication, we worked together to accomplish marathon social work. This inspired Sri S.S. Kejriwal ji to start the MCKV. I became an integral part of Agrasen Balika Shiksha Sadan, Sri Agrasen College, ABSS Institute of Higher Education, Agrasen Educational Trust, Agrasen Boys School, MCKV and Agrasen Town. Today, ABSS is having 5,000 students and around 2500 boys in Agrasen Boys School, imparting quality education to all the boys and girls of Lilwa and Howrah. पिछले 60 सालों से भाई साहब और मैं जुड़े हुए थे, अच्छाई में, कठिनाई में, जैसे किशन और सुदामा। और आज हमारे बीच वो नहीं रहे, but on his birthday I will pay my tribute and reverence in the befitting manner by taking an oath with all of you to flourish this dream project of Bhai Sahab of Agrasen Balika Shiksha Sadan and taking it to the zenith. Come, let us pick up the baton and pass on the baton of ABSS.
initiative would never have been successful had we not received the cooperation of Miss Pushpa Mishra, the co-curricular activity in charge, who had edited the book Shiksharthi Se Shikshavid Ka Safar, which has acted as a rectangle of information and photographs for this skate that we have presented. Moreover, I would like to extend a heartfelt thanks to our principal sir as always, and Sri Naveen Ji Tikmani, both of whom had helped us tremendously to frame this script way back in February this year. Thank you, sirs. I would also like to extend on all of our behalf our thanks to the entire Aggression family and especially our administrative officer, Madam Goina Chakraborty, and as well as at that time when we were framing this script in February, Ms. Anushka Ganguly and Ms. Moshimi Mahata, who is no more with us today. I thank everyone from the core of our heart on behalf of all Agrishanians for giving us this opportunity of a lifetime. Namaskar.
लाल जी अग्रवाल, आदरणीय बजरंग लाल जी अग्रवाल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर पंकज गोयल जी, रमेश अग्रवाल जी, प्रभात खबर से श्रीकांत शर्मा जी, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन, माँ, आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे 2 प्रोग्राम के लिए जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल्ड्रन डे और आपके लेट फाउंडर चेयरमैन साहब का बर्थडे है। मैं इस ज़्यादा कुछ समय नहीं लूँगा आप लोगों का। जिस तरह से आपने दोनों प्रोग्राम किया है, मैंने शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। 25 साल को आप लोगों ने एक माला में पिरो के जिस तरह से आज यहाँ दिखाया, 25 साल पहले बहुत सी बातें हम लोगों को भी नहीं मालूम थी, वो आप लोगों ने इस अद्भुत, मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या बोलूं, इस अद्भुत कार्यक्रम से आप लोगों ने 25 साल को 25 मिनट में सब चीज दिखा दिया और समझा दिया। चिल्ड्रन डे के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, इट इज अ स्वीट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द इनर innocence in heart we all have. So happy Children's Day to all of us. और मैं सर और सर की टीम के बारे में हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा, आप लोग हैं तो अग्रसेन हैं, आप ही से अग्रसेन हैं और आप ही से अग्रसेन रहेगा। केवल और केवल सर, ये आप और आपकी टीम ने स्कूल को इस मुकाम पे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। पापा के बारे में आप लोगों ने सब कुछ तो कह दिया, मैं क्या कहूँ। जितना घर में नहीं रहते थे उतना यहाँ रहते थे, उनका दिल दिमाग सब चीज यहीं रहता था। आपने सब चीज, आप में से ज्यादा उनको जानते हैं। मैं 2 लाइन एक पुत्र की तरफ से बोलूंगा, पर्सनल एजुकेशन इंटरेस्ट की तरफ से नहीं, एक पुत्र बोल रहा है एक पिता के। 2 लाइन बोलूंगा। मेरा साहस, मेरा मान, मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत, मेरी हसरत, मेरी पहचान है पिता, मेरे रिश्ते, मेरे नाते इनसे है, मेरे दिल की धड़कन है, मेरा स्वाभिमान है पिता। मैं उन सभी ट्रस्टियों का, मेंबरों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि स्कूल को 25 साल से जिन लोगों ने निस्वार्थ सेवा दी है और स्कूल को स्कूल बनाने में जिन लोगों ने सहयोग दिया है। हमारे बीच में हमारे 2 ट्रस्टी यहाँ बैठे हुए हैं। आज हर प्रोग्राम में आप लोग आते हैं सर, और सब हर तरह से आप लोग स्कूल का साथ दे रहे हैं। आगे भी आप लोग इसी तरह देंगे। 25 साल का आगे भी प्रोग्राम होगा, आप लोग ऐसे ही आइए, सहयोग दीजिए स्कूल को। मेरे पास में इससे ज़्यादा और कुछ बोलने को नहीं है। मैं निःशब्द हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने, मैं टीचर्स को फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोनों स्कूल की टीचर्स को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर और आप, मैं टीचर्स को, मेरे पास में एक ही चीज़ बच जाती है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ नहीं। धन्यवाद।
Thank you very much, sir, for your valuable words. It's a great humility that has no comparison. Thank you very much for honoring us. Now we have come to the last program. We have lost somebody whom we love. But the life of one we love is never lost. Its influence goes on through all the lives it has ever touched. Reverend Chairman, sir, you may be gone from our side, but never from our hearts. Our next presentation. So before we present our last program, I would request I am proud of my husband, Sri Vasudev Ji Tikmani. बोलते हैं कि एक बीज में इतनी शक्ति होती है, बीज दिखने में इतना छोटा दिखता है, पर उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो एक जंगल खड़ा कर सकता है। जिन दिन इनके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझको एक बीज लगाना है और उसको विशाल वृक्ष, विशाल जंगल की तरफ उसको खड़ा करना है, जहाँ यहाँ पर सारे क्षेत्र में जहाँ पर के लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, मुझको वहाँ सुविधा लानी है। आपको एक छोटा सा वाक़या इनके ज़िंदगी में मैं बताना चाहूँगी। मतलब एकदम स्टार्टिंग की बातें हैं, जैसे 2 मन के बोरे में अपने लोग अनाज डालते हैं, उतने बड़े बोरे मेरे घर में आते थे और उनमें एप्लीकेशंस भरे रहते थे। यू कांट बिलीव, रात में 9 बजे खाना खा के बैठते थे और उन लेटर्स को होल नाइट पढ़ते थे, एप्लीकेशंस को छांटते जाते थे। जब सुबह 5:30-6 बजते थे तब मैं इनको बोलती थी, अब आप थक गए होंगे, 1 कप चाय पी के अब आप आराम करिए। ये इनका जीवन था, इनका ये जो स्कूल था ये एक सपना था, और सपना ही नहीं था, इन्होंने अपने इस चीज़ के पीछे अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने परिवार को सब त्याग दिया था, सब उस पर समर्पण कर दिया था। आज जो इन्होंने, आज जो मान सम्मान आप लोग दे रहे हैं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इंसान को जब कुछ इतना मिलता है तो उसको गर्व होता है, उसके परिवार वालों को गर्व होता है, किंतु उसके पीछे कितना समर्पण हमको करना पड़ा है, ये कोई भी नहीं समझ सकता। और वो भी, अब मैं क्या कहूँगी, इससे आगे मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। बहुत कुछ अपोजिशन, बहुत कुछ सहना, परिवार की बातें सुनना, अपने घर के अपोजिशन सुनना, बाहर के अपोजिशन सुनना, इतने के बीच में और अपने मकसद को पूरा करना, क्या मजाक था? ये मजाक नहीं था। इन्होंने अपने 25 साल किस तरह गुजारे हैं, नो वन कांट इमेजिन। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, इनको ये नहीं पता होता था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चों की शादी कब हो रही है, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था। अब आगे मैं मतलब आप लोगों को क्या कहना चाहूँगी, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया, आज उसका महत्व वही समझ सकता है जो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हुआ। बाकी बोलना बहुत सरल होता है, और इस राह पे चलना और इतना समर्पण करना, सब कुछ समर्पण करना। जिस दिन उन्होंने ये बीज को डाला, उस दिन उन्होंने अपने बिजनेस को त्याग दिया। क्या मजाक है अपने परिवार को चलाना? मतलब इनके लिए कुछ नहीं था, न इनका परिवार था, न कुछ था। जो कुछ भी था वो एक छोटा सा बीज था, बस उसको मेरे को जंगल बनाना है। जंगल का मतलब ये होता है एक छोटा सा बीज जो है, अपने लोग उसको कुछ सोच नहीं सकते, किंतु वो कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। आज जो ये अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन स्कूल है, ये विशाल वृक्ष बना हुआ है, और इस पर अपने को हम गर्व कर सकते हैं। अब मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब
इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, किंतु यही शब्द है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, मैंने कभी इनको ये नहीं कहा कि आप अपना पूरा जीवन स्कूल में दे रहे हैं तो हम लोग भी तो घर में कुछ हैं। नहीं, इनके लिए सब कुछ स्कूल था। फोन इनके कानों से उतरता नहीं था। एवरी टाइम सरोज ऐसे करो, सरोज ऐसे करो, तुमको ऐसे करना है, साबिरा तुमको ऐसे करना है। पूरी टाइम इन्होंने कान से फोन को चिपका के रखते थे। कभी कभी तो हम लोग मतलब ऐसे हो जाते थे कि ये मतलब कुछ समय घर में आते हैं, उस समय इनके कान से फोन उतरे तो हम लोग भी थोड़ा रिलीफ महसूस करें, पर नहीं, ये नहीं समझते थे, क्योंकि इनके दिमाग में, दिल में सब तरफ ये स्कूल ही था। और आज इनकी जो स्कूल इस चरण पर पहुंचा हुआ है, ये इनकी तपस्या का फल है, बाकी पूरी टीम का फल है। Thank you, ma'am. Thank you very much. It's your constant support that Sir took achieve such heights. It is your support, with your support, that he could achieve all this, and along with that, make a big तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां निकाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों नहीं ये दशा तेरी?
performance has given us goosebumps. You may be gone from our side, sir, but never from our hearts. We promise to follow your footprints that you left as your legacy. May the light lit by you guide us throughout. I would now like to invite our Honorable Chairman, Principal Sir, to be here on stage. Sir, we are requested to be here to share your feelings and deliver the vote of thanks. Sri Pankaj, Sri Navi, Bhaviji, Suman and others, my dear teachers, everyone who is here. I am thinking from the very beginning over here, what we have left, the entire reel which is present in the mind about the school and its development, from where we started and where we have come, where we have arrived, and how are we proceeding to fulfill the dream of our beloved chairman, sir. My dear teachers, everyone who has witnessed this program can understand what a dedication, love and service for the society Sri Tikmani symbolized and sacrificed his life. I was associated with him when I was a student of class 4 and 5. And how we came together, I have not been able to understand till today. It was not a mission by him and me, developed by him and me. It was a mission developed by the Almighty. How we came together. How he came. चलो तुम्हारा क्लास 11 में प्री यूनिवर्सिटी में कहाँ एडमिशन लिए हो? All of a sudden one fine morning he told me, and I told him I don't know, I have not taken any admission, just I am wondering, हो जाएगा admission? अरे नहीं होगा नहीं करो. So I remember those days, and he took me to the Presidency College, Vidyasagar College, Scottish Church College. Every college told me admission तो हो गया, अब कहाँ वाला admission होता है? एक की admission है? अरे हम तो देखो. Then I realized where in which type of fool's paradise I was living. And भाई साहब looked at me, क्या होगा सरोज? अब क्या होगा? तुम तो साइंस पढ़ना चाहते हो, कैसे होगा? And we came with great depression in my mind. And still, I did not have any way out. I said, God's will is there. But he was thoughtful about me. He came after 2-3 days and told, अभी नया कॉलेज खुला है, रामेश्वर बाबू खोले हैं, लाल बाबा कॉलेज, तो लाल बाबा कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी साइंस खुलेगा, इस साल साइंस मिलने का परमिशन है. मैं प्रिंसिपल से जाके बात करता हूँ, मिलेगा तो मैं एडमिशन करूँ. ले आए, लाल बाबा कॉलेज में एक दिन जाकर एडमिशन करा दिया. I got admitted. Altogether, when the classes started, there were 46 students. But they all were experienced students, failures from other schools or those who have dropped their education. हम क्लास में बैठे तो वो लोग लंबी चौड़ी बातें करें, हैं? उनको तो सब मालूम था, वॉइस लॉ क्या होता है, चार्ज लॉ क्या होता है, हैं? दुनिया भर का बात वो लोग करें, हर चैप्टर का बात करें. आई यूज्ड टू वंडर, अरे ये सब तो हमको कुछ नहीं आता, ये लोग जानता है.
I am grateful. And then I used to come and search in the books. He किधर में चैप्टर है लिखा है देखना होगा. I have to memorize. I am just simply bewildered at their behavior. But they were only superficial. They had superficial knowledge. They did not have deep knowledge. So अब उसका कोई स्वार्थ नहीं था मेरे प्रति. कोई स्वार्थ नहीं था. Only kind-heartedness. He took me लाला तो हमने सोचा उस दिन 1965 में तो भाई साहब को मेरे से स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था. वो जाकर मेरे साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज स्ट्रीट से पैदल आए नीमतला घाट तक. हम लोग विद्यासागर कॉलेज गए, कॉलेज से सब जगह घूमते फिरते 2 घंटा 2.5 घंटा पहुंचे. उस दिन का सब साइन हमको याद है. And he toiled with me, but for nothing. उस दिन का बस भाड़ा भी आज तक बाकी है. हम तो दिया नहीं भाड़ा बस का. तो चाहे भाड़ा बस का भाड़ा लगा, चाहे स्टीमर का खर्चा लगा, चाहे लीलवा तक आने का खर्चा लगा. He paid. God is there, He is there. I am always indebted to Him. He did not have any. After a year when the result was published, and I got down from the bus in front of Lalua College and I started crossing GT Road to enter into the college. Then school leader for being playing the role of the school leader. I would request everyone to rise in reverence.